انسانوں کو غور سے دیکھو، یہ کسی نہ کسی چیز میں کھونے کی فکر میں ہے۔ یہ 3 گھنٹے تک بیٹھ کر پردہ سکرین کو سینما میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ جھوٹی کہانی ہے، جانتے ہیں کہ یہ ایکٹر ہیں، لیکن پھر بھی فلم دیکھتے ہوئے تم ڈوب جاتے ہو۔ جھوٹی فلم کی کامیڈی پر ہنستے ہو، جھوٹی فلم کے دکھوں پر روتے ہو۔ کیوں؟ اور فلم ہی نہیں، جو بھی کچھ تم کرتے ہو، شراب جو پیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ایک جھوٹی کیفیت ہے جو کیمیکلی طاری کر لی گئی ہے۔ بازاروں میں لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ ٹی وی ڈراموں میں خواتین ڈوب جاتی ہیں۔ میچ دیکھنے جاتے ہیں، لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم خود سے بور ہو گئے ہو، اوب گئے ہو، اکتا گئے ہو، اس لیے کہیں ڈوبنا چاہتے ہو، اور جانتے ہو کہ جہاں ڈوبنے گئے ہو وہاں ڈوبا نہیں جا سکتا۔ یہ فلمیں، یہ شرابیں، یہ شاپنگز، یہ ڈرامے، یہ چلو بھر پانی ہیں، ان میں بھلا کہاں ڈوبا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر ڈوبنے کا یہ عمل گہرا ہو، ایسا کہ جس میں ڈوبنے کے بعد نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر بھی تم اپنی منزل کو پا سکتے ہو۔ دریا کے سینٹر میں جا کر ڈوبو تو ڈوبنا کامل ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس ڈوبنے سے تم ڈرتے ہو، کیونکہ اس ڈوبنے میں پھر تم رہتے ہی نہیں۔ تمہاری انا پھر لوٹ آنا چاہتی ہے۔ یہ فلم، یہ شراب، یہ شاپنگ، یہ ڈرامے، یہ بس تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ڈبوتے ہیں، تمہیں خود سے محو کر دیتے ہیں۔ دریا کے کنارے پر، ساحل کے اتھلے پانی پر اپنے پیر ڈبو آتے ہو اور پھر دوڑتے ہو واپس ساحل کی طرف۔ تم ڈوبتے بھی تو پورا نہیں ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ صوفی بھی ڈوبتا ہے، مگر ایسے کہ پھر وہ بچتا ہی نہیں، پھر وہ واپس نہیں لوٹ آتا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیسے ڈوبا۔ کوئی صوفی عبادتوں میں ڈوب گیا، کوئی مراقبوں میں ڈوبا، کوئی رقص میں ڈوبا، کوئی کسی کے عشق میں ڈوبا، مگر مکمل ڈوبا، اور مکمل ڈوبنا ہی صوفی ہونا ہے۔ آدھا ادھورا ڈوبنا تمہیں کہیں نہیں لے کے جاتا، بس تھوڑی دیر کے لیے فرار تمہیں مل جاتا ہے۔ ایگو بہت بوجھل ہو جاتی ہے تو تم تھوڑی دیر ڈوب آتے ہو، اور یہ تم سینما میں ہی نہیں کرتے، بازار میں ہی نہیں کرتے، یہ مسجدوں میں بھی کرتے ہو، یہ مندروں میں بھی کرتے ہو، یہ گرجوں میں بھی کرتے ہو۔ وہ شخص کے جو دکان پر بیٹھا ہے اور اس کے ذہن میں نماز کا وقت گھوم رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے جس کا دل دکان میں اٹکا ہوا ہے، یہ کبھی خود کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، وہ دکان کا ہی ہو جائے یا پھر مسجد کا ہی ہو جائے، پھر کامل ڈوبنا ہو سکتا ہے، پھر اناج سے کامل چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ تم تاریخ کے جتنے بھی بیدار انسان ہیں، جتنے بھی صوفی ہیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھنا، وہ کسی نہ کسی چیز میں کامل ڈوبے تھے، ایسے ڈوبے تھے کہ ان کی انا مر گئی اور وہیں سے ان کا دوبارہ جنم ہوا۔ کوئی بادشاہ ہو اور اس نے دنیا کا وہ سب دیکھا ہو، جیا ہو، دنیا کی چکا چوند میں ڈوبا ہو، تو اس کے صوفی بننے کا چانس اس شخص سے کہیں زیادہ ہے کہ جسے دنیا ہی پوری نہ ملی ہو۔ 2 ہی لوگ روح کی بیداری کی منزل کو چھوتے ہیں، ایک وہ جس نے دنیا کو بھوگا اور جانا کہ یہ سب بیکار ہے، اور دوسرا وہ جس نے بھوگا تو نہیں مگر دوسرے انسانوں کے تجربے سے جانا کہ دنیا بیکار ہے۔ یہ بھوگ کے دریا میں ڈوب کر پار ہوا جا سکتا ہے، یا پھر گہرے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر منزل کو چھوا جا سکتا ہے۔
चुल्लू भर पानी में डूबना सिर्फ वक्ती लज्जत है। फिल्म 3 घंटे की खुद फरामोशी है। बाजार 1 घंटे के लिए मैं से फरार देता है। शराब चंद घंटों तक तुम्हें तुमसे बेखबर कर देती है। ये चुल्लू भर पानी का डूबना जो वक्ती लज्जत देता है, इसके नतीजे में वापसी पर जो अजियत मिलती है वो भी शदीद होती है। क्योंकि शराबी शराब पीते वक्त जिस मैं से आज़ादी का मज़ा लेता है, जिस सुख को जानता है, जिस सुख को जीता है, उस सुख को जीने और जानने के बाद फिर उस सुख से महरूमी को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है। फिल्म कितनी देर तुम्हें डुबो सकती है, रक्स कितनी देर तुम्हें तुमसे भुला सकता है, शराब की मस्ती कितनी देर तक तारी रहेगी। फिल्म ख़त्म होगी, रक्स ख़त्म होगा, शराब का नशा टूटेगा। अना अब पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ सामने खड़ी होगी। अब तुम अपनी हालत का तकाबुल करोगे, कंपेयर करोगे। तुम्हारे सामने नशे की मस्ती वाली हालत भी हो गई और दुनिया की बेलज्जत मसरूफियतें भी आ गईं। अब दुनिया के दुख और भी ज़्यादा शिद्दत से चुभेंगे, महरूमियाँ और भी ज़्यादा खटकेंगी, कर्ब और भी शदीद होगा। आधी अधूरी खुद फरामोशी, अना के सितम से वक्ती फरार तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जाता। तुम्हें मैं बताऊं कि सूफी की हालत और शराबी की शराब के नशे में हालत बिल्कुल सेम होती है, मगर सूफी की हालत हमेशा हमेश की होती है। उसकी वो हालत उससे एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाती, इसलिए उसे मुकाबला करने की नौबत ही नहीं आती। उसे अब कुछ करके कुछ होने का खप्त ही नहीं रहता। शराबी को मगर फिर वही लज्जत पाने के लिए शराब पीनी पड़ेगी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शराब पीनी पड़ेगी, और शराब की मस्ती के बाद अज़ियत की शिद्दत भी पहले से ज़्यादा होगी। मुकम्मल डूबना है तुम्हारी निजात, सॉल्वेशन। ऐसा डूबना कि जिसमें तुम्हारी अना के बच रहने का कोई भी इम्कान ना रहे। तुम्हारी दुनिया में जो फरार के लिए तुम डूबते हो, वक्ती तौर पर मैं को खोते हो, उसके बाद की मैं और भी ज़्यादा ताकतवर होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अंधेरे रास्ते पर तुम चले जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आई, उसकी फ्लैश लाइट ने तुम्हारे सारे रास्ते को रोशन कर दिया, मगर जब वो गाड़ी गुजर जाती है तो देखते हो कि अंधेरा अपनी शिद्दत में और गहरा हो जाता है। ये इंटरटेनमेंट के नाम पर, तफरीह के नाम पर दुनिया जो अनाज से फरार के रास्ते बनाए बैठी है, ये बिल्कुल उसी गाड़ी की फ्लैश लाइट की तरह काम करते हैं। कुछ देर पार्क हो आते हो, कुछ देर सिनेमा हो आते हो, कुछ दिन छुट्टियां मनाकर पहाड़ों की सैर कर आते हो, कुछ देर बाजार में शॉपिंग कर आते हो, तो ज़िंदगी दिलचस्प लगती है। बोझ से आज़ादी का एहसास मिलता है, सुकून और इत्मीनान फील होता है। मगर जो ही इंटरटेनमेंट की ये गाड़ी गुजर जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता पहले से भी तारीक हो जाता है। मुकम्मल तारीकी में तो रास्ता कुछ दिखाई भी देता था, लेकिन गाड़ी की फ्लैश लाइट के गुजर जाने के बाद थोड़ा सा भी रास्ता नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाते हो। जिंदगी में दुख है, शराब पी ली, दुख फरामोश हो गया, लेकिन सवाल ये है कि कब तक ऐसे डूबोगे? थोड़ी देर बाद लौटोगे ही। शराब ऐसी हो कि जिसका नशा कभी भी ना टूटे, तो समझो तुम्हें खुदा मिल गया। देखते हो सूफी शायरों की शायरी को, उसमें भी अक्सर शराब का जिक्र मिलता है। वो हकीकी शराब की बात कर रहे होते हैं कि जिसका नशा कभी नहीं टूटता। सूफी तारीक रास्तों पर
गाड़ी की फ्लैश लाइट के सहारे नहीं चलता, बल्कि अपने अंदर ही मौजूद शऊर को शोला बना लेता है, मशाल बना लेता है। अब उसका रास्ता चाहे दूर दराज अंधेरा रहे, मगर वो जो उसके सामने के कदम हैं उस पर रोशनी ही रोशनी रहती है। वो 2 कदम चलता है तो रोशनी भी उसके साथ ही 2 कदम चलती है। अब उसकी जिंदगी में अंधेरा कभी नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। सूफी जिस शराब की बात करता है वो वही शराब है कि जिसका नशा कभी नहीं टूटता। ये समंदर के बीचों बीच डूबना है, ये अना की मुकम्मल शिकस्त का नाम है। वो शराब कि जिसमें डूबे तो फिर डूबे। सूफी साहिल के हल्के पानियों में नहीं, समंदर की गहराइयों में डूबता है, जहां से लौटना हो ही ना। कभी सोचा है तुमने कितने बादशाह थे, रईस थे, अमीर उमरा थे जो फकीर हुए, सूफी हुए, मगर कभी लौटे नहीं। लेकिन कितने ही तुम्हारे दुनियादार हैं जो कई मकसद बनाते हैं, गोल बनाते हैं, कई चीज़ों के पीछे भागते हैं और फिर छोड़ आते हैं। याद रखना, साहिल के उथले पानियों में डूबना नहीं हो सकता। दुनिया की शराबों में अना को फरामोश नहीं किया जा सकता। नदियों में नहीं डूबा जाता, डूबने के लिए समंदर चाहिए होता है। फैक्ट्रियों, शोहरतों, दौलतों में जितना भी डूबने की कोशिश कर लो, न डूब सकोगे। हाँ, खुदा में डूबा जा सकता है। ये तुम्हारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। सियाना वो है जो 3 घंटे फिल्म देखकर बाहर निकला और उसने खुद से पूछा कि राज क्या है इन 3 घंटों में, जिंदगी का कोई भी गम मुझे सता क्यों नहीं रहा था। जागा हुआ आदमी शराब पीता है तो शराब के बाद खुद के सामने ये सवाल रखता है, वो मिस्ट्री क्या है कि सब गम हवा हो गए थे। ऐसे इंसान के लिए यही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इनलाइटनमेंट का रास्ता बन जाती है, और बेहोश इंसान के लिए यही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और अंधेरा ले आती है। वो बार बार फिल्म देखेगा, वो बार बार शराब पिएगा, और हर बार जब वापस लौटेगा तो अंधेरा और घना होगा। फ्लैश लाइट गुजर जाने के बाद गुजरगाह फिर तारीक होगी। वो फिर अंधों की तरह खड़ा दुनिया के दुखों को झेल रहा होगा। जागा हुआ इंसान इंटरटेनमेंट के वक्ती सुख को छूकर उस राज को खोजने की कोशिश करेगा कि वो सुख हमेशा हमेश के लिए कैसे मुमकिन हो। सोया हुआ इंसान हर बार उसी सहारे को फिर पकड़ेगा। तुम्हारी दुनिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मसला नहीं है। तुम इस इंटरटेनमेंट को, इस तफरीह को जैसे जीते हो, वो बस एक अंधी आदत है, वो नशे की लत है और कुछ भी नहीं। इसमें होश नहीं है, ये कॉन्शियसली जीना नहीं है, इसमें गहरी सोच नहीं है। ये आदती जीना दुनिया है, और आदत से ऊपर उठ जाना है मजहब। जीना आदत नहीं है, आदत से ऊपर उठ जाने का नाम है, हकीकत को पा लेने का नाम है। गुलजार की एक प्यारी सी नज़म पर आज की बात को ख़त्म करते हैं। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में। पाँव बेहिस हैं, चलते जाते हैं। एक सफ़र है जो बहता रहता है, कितने बरसों से, कितनी सदियों से जिए जाते हैं, जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं।